Students, today we will discuss about chapter 1 from class 9th, improvement in food resources. It includes various topics, so we will discuss one by one. First one is agriculture. The process in which we cultivate the field and prepare it for crop production is known as agriculture. Now what is crop? जब एक जैसे प्लांट एक लार्ज अमाउंट में एक फील्ड में उगाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? क्रॉप. Now livestock, the caring, feeding, breeding of domestic animal in large scale for human welfare is known as livestock. And there are four type of revolution. Green revolution, it increase the production of food grain. White revolution, increase the production of milk. Yellow is for oil. Blue revolution is for fish production, and golden revolution is for pulses production. Now sustainable agriculture, the successful management of agricultural resources to satisfy the changing human need while enhancing the quality of environment and conserving the natural resources is known as the sustainable agriculture. Means sustainable agriculture का मतलब क्या है कि ह्यूमन नीड को देखते हुए जो आपकी सॉइल है, जो आपकी क्रॉप है, उसकी फर्टिलिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और एनवायरनमेंट की भी प्रोटेक्शन का ख्याल रखना, वो क्या कहलाता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. Advantage of sustainable agriculture, it achieve the combination of biological cycle, it help in protection and renewability of soil fertility, it manage the use of farm resources, it minimize the pollution, and it help to get an adequate and reliable income. Next one is organic farming, the practice of farming with maximum use of manures and biofertilizers, biopesticides, with healthy cropping system and the minimal use of chemicals in the field or crop production is known as organic farming. The benefits of organic farming, it help to increase the water holding capacity of soil, it help in maintaining the healthy soil, it help in recycling the waste, and it does not cause any type of pollution in the soil or environment. Next one is your type of crop. There are three type of crop. Rabi crop, these are grown in winter season in the month of October and November, and these are wheat, grain, mustard, etc. Kharif crop, these are grown in rainy season in the month of July and June, and the main crop is maize, soya bean, paddy, etc. Z crop are those which are grown in summer season in the month of April and June, and these are watermelons, cucumbers, etc. So now what is photo period? फोटो पीरियड का मतलब होता है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट कितना चाहिए प्लांट को, वो कहलाता है फोटो पीरियड. तो उसके बेसिस पे कुछ प्लांट जो हैं लॉन्ग डे प्लांट होते हैं जैसे कि आपका पोपी और स्पाइनच, कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं जैसे क्राइजेंथेमम, और कुछ डे न्यूट्रल होते हैं जैसे कि स्नैपड्रैगन. सो दीज आर अबाउट द टाइप ऑफ क्रॉप. नाउ नेक्स्ट वन इज योर प्लांट ब्रीडिंग. प्लांट ब्रीडिंग क्या है? इट इज़ द साइंस एज वेल एज एन आर्ट ऑफ इम्प्रूविंग जीनोटाइप ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू देयर इकोनॉमिक यूज़. यानी एक नई जनरेशन प्रोड्यूस करना एक नए मेथड से क्या कहलाता है? प्लांट ब्रीडिंग. इसमें बहुत सारी टेक्निक यूज़ होती हैं, जैसे पहले है इंट्रोडक्शन, देन सेलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, एंड देन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या है? इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? किसी नेटिव प्लांट को एक जगह से लाके, यानी जहाँ वो होता है वहाँ से लाके उसे एक नई जगह पे प्लेस कर देंगे, एक नई जगह पे उगाएंगे. तो जहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज भी अलग होगी, एनवायरनमेंट भी अलग होगा, वो क्या कहलाता है? इंट्रोडक्शन. देन द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ सच प्लांट टू देयर न्यू रीजन इज नोन एज एसिमिलाइजेशन. यानी उस प्लांट का एक नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना क्या कहलाता है? एसिमिलाइजेशन. देन सिलेक्शन जो है आपका वो दो टाइप का है, एक है मास सिलेक्शन, एक है प्योर लाइन सिलेक्शन. मास सिलेक्शन में क्या होगा? हम बहुत सारे जो प्लांट हैं या बहुत सारे जो सीड हैं किसी प्लांट के वो ले लेंगे, और उनमें से हर एक प्रोजेनी में जो नया सीड आएगा उनमें से हम जो सीड है या जो प्लांट है उसे जो मेन जो हेल्दी प्लांट होगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे फर्दर अपने ग्रोथ के लिए. नेक्स्ट वन इज प्योर लाइन सिलेक्शन. इन दिस मेथड सीड of single plant with desired character are shown in separate row and from progeny desired plant is selected. Next one is your hybridization. hybridization में क्या होगा कि अलग अलग
जो जेनेटिक वेरिएशन के प्लांट्स हैं या जेनेटिक वेरिएशन के जो सीड हैं हम उन्हें ग्रो करेंगे और उनसे जो एक नई प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी, एक हाइब्रिड वैरायटी। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। देन म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है, चेंज इन जीन। हम क्या करेंगे, इंड्यूस कर देंगे, जीन में वेरिएशन ला देंगे ताकि एक नया आपको प्रोजेनी, एक नई जनरेशन आपको मिल सके, वो क्या कहलाती है, म्यूटाजन। इसे आप आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हो और ये नेचुरली भी हो सकती है जब आप सीड को या किसी प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह पे जर्मिनेट कराते हो। देन है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसे आप जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं और ये मॉडर्न टेक्निक है एक नया प्लांट ग्रो करने की, जिसमें क्या होगा कि जो आपके कैरेक्टर्स हैं प्लांट के अंदर वो नए कैरेक्टर इंड्यूस होंगे, जो उनके एंसेस्ट्रल कैरेक्टर हैं वो रिमूव हो जाएंगे और इससे जो एक प्लांट तैयार होगा वो एक ट्रांसजेनिक प्लांट होगा, यानी जो रेसिस्टेंट शो करेगा पेस्ट वगैरह के लिए और एनवायरनमेंट को भी टॉलरेट करने में जो हेल्प करेगा। तो इस तरीके से जो प्लांट तैयार होगा वो क्या कहलाएगा कि एक रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से हमने जो प्लांट तैयार किया है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्लांट तैयार किया, वो क्या होगा, ट्रांसजेनिक प्लांट। ऐसे प्लांट जो है 2002 से हमारे इंडिया में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जैसे बीटी कॉटन है, वो एक ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसे जो पेस्ट वगैरह है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। देन है न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट, प्लांट्स के जो है दो टाइप के न्यूट्रिएंट है, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट और है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो जो कि लार्ज अमाउंट में जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर एटसेट्रा। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, जैसे कि आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल, ऑल दीज आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देन मैन्योर, मैन्योर क्या है, ये भी नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं जो कि हमें डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से या पील्स ऑफ फ्रूट या वेजिटेबल से डिकम्पोज होने के बाद जो ऑर्गेनिक फॉर्म में जो हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, मैन्योर। और ये ज़्यादा फायदेमंद है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स। देन टाइप ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट है वो मैन्योर, टाइप ऑफ मैन्योर इज ऑफ 3 टाइप, फार्म यार्ड, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग। तो जो फार्म यार्ड मैन्योर है उसमें हम क्या करेंगे, जो मैन्योर है आपका, जो आपका वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट हो चाहे एनिमल वेस्ट हो या सब्जियों के छिलके, पेड़ के पत्ते, कुछ भी हो, उन्हें आप एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और उसे कवर कर देंगे मिट्टी से, बैक्टीरियल एक्शन से वो यूजफुल मैन्योर में चेंज हो जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, फार्म यार्ड मैन्योर। एक होता है कंपोस्ट, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है, लीव्स है, ऑर्गेनिक मैटर यानी जो भी है जिसे आप बायोलॉजिकली डिकम्पोज कर सकते हो, उसे एक गड्ढे में रख देंगे और वो अर्थवॉर्म वगैरह की हेल्प से या बैक्टीरिया, फंगी की हेल्प से वो डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, कंपोस्ट। देन एक है वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, अर्थवॉर्म को इंक्लूड करते हैं। इन अर्थवॉर्म क्या करेंगे, जो आपका वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसे जल्दी से डिकम्पोज करने का काम करेंगे और जो इनके हेल्प से जो भी डिकम्पोजिशन होगा वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा फर्टिलिटी वाला होगा, ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन वाला होगा, इसलिए वर्मी कंपोस्टिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन है आपका फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन साथ में ये पोल्यूशन भी क्रिएट कर सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स है, एक है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, इसमें आता है आपका यूरिया वगैरह। देन है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स, इसमें फॉस्फोरस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि कैल्शियम मेटाफॉस्फेट जो है आपका, वो इसका एग्जांपल है। और एक है पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स, इनमें पोटेशियम कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, इसका एग्जांपल है पोटेशियम सल्फेट, पोटाश वगैरह। All these are used to increase the fertility of soil, but they may cause harmful effect also for human being, animals and the soil also. Then आता है आपका irrigation. The method of watering the plant is known as irrigation. इरीगेशन कई टाइप का हो सकता है, जैसे कि आपका ट्यूबवेल के थ्रू, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, ऑल दीज आर द मेथड ऑफ इरीगेशन। देन ट्यूबवेल सबसे पुराना, पहले वो वेल थे, अब उसके बाद ट्यूबवेल है जो पुराना मेथड है, इसमें पानी का बहुत वेस्ट होता है। लेकिन जो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम है ये मॉडर्न मेथड है इरीगेशन के, और इसमें क्या है कि हर एक जो ड्रिप सिस्टम में क्या है कि हर एक जो प्लांट रूट है उसके पास एक पाइप पहुंचा हुआ है, उसके पास एक टैप है, जिस भी प्लांट को पानी की ज़रूरत होती है हम उस टैप को ओपन कर देते हैं और उस प्लांट को पानी मिल जाता है, तो इससे पानी का वेस्ट भी कम होता है। एक है स्प्रिंकलर सिस्टम,
उसमें भी क्या है, हर एक पाइप में क्या है, स्प्रिंकलर है, तो वो पानी को स्प्रेड करके फैलाता है। जब पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो हम उसे बंद कर देते हैं। तो ये कुछ एडवांस और मॉडर्न मेथड है इरिगेशन के। नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ क्रॉपिंग। First one is mixed cropping. The practice of growing two or more crops simultaneously in the same field is known as mixed cropping. यानी एक और एक से ज़्यादा क्रॉप एक साथ एक ही फील्ड में उगाना, वो क्या कहलाता है, मिक्स क्रॉपिंग। जैसे कि वीट और ग्राम को एक साथ उगा लिया, मेज़ और उड़द को एक साथ उगा लिया, तो ये क्या कहलाता है, मिक्स क्रॉपिंग। एक है आपका इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड बट इन डिफरेंट रो। एक रो एक क्रॉप की, एक रो दूसरी क्रॉप की, तो वो क्या कहलाता है, इंटर क्रॉपिंग। नेक्स्ट वन इज योर क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है कि इसमें ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन द सेम फील्ड इन ए प्री प्लान्ड सेशन, यानी कि दो क्रॉप को, यानी एक बार एक क्रॉप उगा ली, एक बार दूसरी क्रॉप उगा ली। जैसे हम सर्दियों में हमने मस्टर्ड वगैरह उगाया, वीट उगाया, और गर्मियों में हमने पैडी वगैरह उगाई, तो वो क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन। यानी सीजनल चेंज पे अपनी क्रॉप को चेंज कर देना, प्रोडक्शन को, तो वो क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मेथड थे क्रॉप प्रोडक्शन के, जिसके थ्रू आप जो इंसेक्टिसाइड है उसकी ग्रोथ को कम कर सकते हो, पोल्यूशन को कम कर सकते हो, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हो, और उसमें जो प्रोडक्टिविटी है उसकी, उसे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ पिसिकल्चर, यानी कि फ़िश को एक लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना इकोनॉमिक यूज़ के लिए, तो वो क्या कहलाता है, पिसिकल्चर। इसे फ़िश फार्मिंग भी बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन ए और डी का। जो फ़िश है वो दो टाइप की हो सकती है, मैराइन फ़िश और इनलैंड फ़िश। जैसे आपके ट्यूना, हिल्सा, सैल्मोन वगैरह हैं, ये आपकी मैराइन फ़िश है। कैटला, राहू, ये कैसी है, आपकी इनलैंड फ़िश है। देन इसमें आपका एक आता है एडवांटेज क्या है इसके, एक है आपका कंपोजिट फिश कल्चर, यानी दो टाइप की ब्रीड को एक साथ एक ही एक्वेटिक बॉडी में ग्रो करना, प्रोड्यूस करना, वो क्या कहलाता है, आपका कंपोजिट फिश कल्चर। एंड इट इज़ यूजफुल इन इंडिया इन 3 टाइप ऑफ फिश वी ग्रो हियर, कैटला, राहू, मैरिगल, and 3 exotic fish from China, silver carp, grass carp and common carp. They are all cultivated together in the same aquatic body. एडवांटेज क्या है, ये एक दूसरे के साथ compete नहीं करती हैं हैबिटेट के लिए, फूड के लिए, और इनसे जो प्रोडक्शन होगा, जो प्रोडक्टिविटी होगी, वो बहुत ज़्यादा हाई होगी और हाई यील्ड प्रोड्यूस करेंगे, विटामिन का भी रिच सोर्स होंगी, और ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा इनसे। देन बी कीपिंग एपीकल्चर, यानी हनी बी को रियरिंग करना, उसकी ब्रीडिंग कराना एक जगह पे इकोनॉमिक यूज़ के लिए, उनसे हनी प्रोड्यूस कराने के लिए, बी वैक्स, विनोम वगैरह गेन करने के लिए, वो क्या कहलाता है, एपीकल्चर या बी कीपिंग। इनमें जो हनी है वो क्या है, आपका एक एरोमेटिक सिरप है, जिसे मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और कॉस्मेटिक सब्सटेंस में भी यूज़ किया जाता है। इसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को दूर करने के लिए भी लिया जाता है, ओबेसिटी को दूर करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छी हेल्दी ग्रोथ के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन प्रेजेंट होता है, और कफ वगैरह में ये एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है, और ये इमीडिएट सोर्स है एनर्जी का। और 1 किलोग्राम हनी में नियर अबाउट 3060 किलो कैलोरी एनर्जी प्रेजेंट होती है। जो बी वैक्स है वो वर्कर बी से हमें मिलती है, और इसमें भी इसे कॉस्मेटिक में, क्रीम वगैरह में इसका यूज़ किया जा सकता है। एक इसका प्रोडक्ट है प्रोपोलिश, उसे एज ए एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है, और जो विनोम है उसे होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं उसमें यूज़ किया जाता है। अब जो हनी बी है उसकी 3 कॉलोनी प्रेजेंट होती है, एक है क्वीन, एक है ड्रोन और एक है वर्कर। जो क्वीन है आपकी, वो आपकी मेन जो बी है हाइव की, वो है, और इसका लाइफ स्पैन 2 to 5 ईयर्स होता है, और ये बहुत सारे अंडे देती है, एक दिन में 2000 के आसपास ये अंडे देती है। और ये 2 टाइप के एग प्रोड्यूस करती है, एक होता है अनफर्टिलाइज्ड एग जो कि ड्रोन बनता है, और एक होता है फर्टिलाइज्ड एग जो कि क्वीन और वर्कर भी प्रोड्यूस होते हैं जिनसे। देन ड्रोन जो है वो आपका मेल है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बना होता है, और इसका काम है जो क्वीन भी है उसके साथ फर्टिलाइज करना और
जब इसका काम जो ब्रीडिंग सीज़न है वो ख़त्म हो जाता है तो इसे हाइव से दूर भेज दिया जाता है और ये फिर डाई हो जाता है। देन वर्कर बी, जो वर्कर बी हैं वो फीमेल हैं जिनका लाइफ स्पैन 3 से 12 महीने का होता है और ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, ये सिर्फ हाइव की देख रेख करती है, यानी जो छत्ता है उसमें हनी इकट्ठा करना, नेक्टर को कलेक्ट करके लेके आना, उसकी केयर करना, कोई हनी भी इंजर्ड है तो उसकी देख रेख करना। वैक्स ग्लैंड होती हैं इनके अंदर जो वैक्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, सकिंग टाइप माउथ प्रेजेंट होता है और ये डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है, यानी हाइव की प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। एक चीज़ आती है कि स्वार्मिंग। स्वार्मिंग क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें जो क्वीन है वो कुछ वर्कर बी के साथ हाइव को छोड़ देती है और जो नई यंग वन जो क्वीन है वो हाइव को हैंडल करने के लिए प्रॉपरली तैयार हो जाती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्वार्मिंग। एक है कॉम्ब, वो कंपार्टमेंट जिसमें वर्कर बी वैक्स सिक्रीट